So we're joined by Paras today. Paras Banjara. He's from Rajasthan. Um, he is a part of a nomadic community. He's born and raised in a nomadic community called the Banjara community. Paras and his brother are the first generation fully literate community members who have come out of the community. Uh, Paras is also extremely active as a member in the community. He's deeply interested in preservation of the community's heritage and heritage in general. And he has been constantly trying to make uh, cross connections with different states, different types of communities around India, even communities in Pakistan, because Rajasthan and Pakistan share borders, and many communities that we find in Pakistan, especially the western part of Rajasthan and eastern part of Pakistan, are like very, very deeply connected. He has spent many years with some of these communities, especially performing communities of the communities who are communities of dancers, musicians, and through these years of, in a way, immersion, he's built his relationships, he has built his understanding around the issue that we are going to discuss today. He also, like, the reason why I said we are very excited to have him today is because he also has had a very unique experience of having been worked in the government as a program officer, Narega in Rajasthan. He was a part of the implementing machinery in Narega when it was started, as well as very closely working on public policy fronts. After leaving his job as a program officer, he worked with MKSS for many years, and he still continues to be associated as a friend of MKSS. He worked with the social audit unit in Telangana in its initial stages when it was being set up as a resource person, someone who understands the practice deeply, as well as someone who understands the institutionalization and its significance very well. He has also worked with the National Committee for Protection of Child Rights, NCPCR, in Delhi on issues of child rights and education. Uh, and from there, he went on to work with CPR, Center for Policy Research, largely focusing on how do we set up mechanisms for community monitoring when it comes to education. How could those mechanisms look like? What kind of platforms can we actually imagine, which talks about aspects of equity, access, etc., when it comes to education. And then he joined Safar as Rajasthan's resource person with keen areas of interest around some of these aspects that we discussed, as well as culture and issues of his community and nomadic tribes in general in Rajasthan and elsewhere. So we are very, very happy, very excited to have Paras today. It is going to be a very lively session. We are going to listen to some songs. We are going to engage in some really interesting conversations about his experiences as well. His session is going to be in Hindi. And like Shahnawaz's session, Vidya and I will be uh, doing translations on the chat. We'll put some summary points there. Uh, and Paras bhai, over to you. पारस भाई हिंदी थोड़ा सरल रखिएगा जिससे हमको भी आसानी हो जाए एंड पीपल हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी वो थोड़ा समझ पाए तो आपका माइक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एनीथिंग यू वांट टू ऐड विद्या सॉरी No, we are all good to go. थैंक यू खुश और विद्या और सारे साथियों को जो जो सुन रहे हैं इस बात को और हम भी पहली बार ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इसको इन विचारों को बांध के कहीं एक जगह रखने का, क्योंकि बहुत टुकड़े टुकड़े में इन सब चीज़ों को सोचते हैं और ये बहुत पॉपुलर कल्चर बहुत पॉपुलर है, लेकिन कल्चर पे बात करना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और उसको एक एकेडमिक चीज़ों में बांध के रखना हम जैसे एक्टिविस्टों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत अलग अलग के विचार है, तो उनको एक जगह बांध के कोशिश कर रहे हैं कि इससे कुछ निकल पाए और इसको आगे बढ़ा है। तो
जैसा कि आप सबको पता है कि आप आज हम कल्चर और कॉमन्स पे बात करेंगे। तो मैं सबसे तो पहले सभी जो साथी जुड़े हैं उन सबसे एक बार पूछना चाहूंगा कि ये कल्चर क्या है आपकी नज़र में या आपकी समझ में, कल्चर है क्या? कोई कोई बताना चाहे यदि इसको। If I could just translate this quickly, the question is, what do you guys mean by culture? What is your understanding? Is a question. So anyone can just raise their hand and say. हाँ Tejas, yes. I think culture for me means, I mean, one word that strikes me when I think of culture is community, but in a very traditional sense, I understand culture as a set of shared values, rules, norms that that abide us and helps us bargain with each other, helps us build relationships with each other, basically foster human civilization to move forward. At least this is the sense that I have gotten from having worked. I think of organizational culture and team culture and what does this mean, and trying to apply the same principle to what Mr. Paris is asking. अच्छा पारस भाई, उनका एक्सपीरियंस ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टीम कल्चर के आसपास रहा है, और उनके हिसाब से कुछ सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, वैसी चीजें जो सबको एक साथ बांध के रख सकती है, एक साथ जीने के लिए एक सहारा दे सकती है, तो वो मोटा मोटा कल्चर है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं। बिल्कुल सही है। और कोई? हाँ, रिंगसेल आई थिंक वांट्स टू कम इन। Yeah, so culture for me would be very simple. It's basically customs, and I don't know if we could equate culture with tradition, but it's like customs and traditions and social behavior of a particular society, right? Culture differs from society to society. You have a specific culture in a certain geographical area, so that would be culture for me. Custom, traditions वगैरह का मिक्सचर अलग अलग ज्योग्राफिक एरियाज के हिसाब से। Anyone else? बस आई थिंक हर्ष भाई ये दो स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही, और आपने बिल्कुल सही एक तरह से शुरुआत की। और जो कल्चर एंड आर्ट है वो किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि बिना कल्चर एंड आर्ट के ये चीजें बहुत अधूरी अधूरी सी होती है। और जो कल्चर है वो इस देश के या समाज के आर्थिक, सामाजिक या उसकी राजनीतिक गतिविधियों का एक से ही निकलता है, वो उसकी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। और भारत जैसे जो बहुलता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, जो ऐसी संस्कृति है, ये जो कल्चर है वो हमारे देश का एक तरह से सिंबल है, क्योंकि ये हमारा जो कल्चर है वही हमारा सिंबल है। क्योंकि हमारा देश विविधता वाला देश है, तो हमारा कल्चर भी विविधता वाला है, बहुलता वाला है, तो उसका एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराएं, जो प्रदर्शन कलाएं हैं, संस्कार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की चित्र शैलियाँ, जो पेंटिंग्स होती हैं, वो यहाँ का राइटिंग्स, जो सोशल, जो सामाजिक या लोक राइटिंग्स है, ओरल स्टोरीज है, ये सब एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा अनूठा संग्रह इस देश में मौजूद है। और जिसे मुझे लगता है कि ये एक मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ये एक इंटिजिबल हेरिटेज है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से विरासत इस देश के लिए ये कल्चर है। और इसी कल्चर और आर्ट से इस देश की पहचान है, इस देश को जाना जाता है, और पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान है, तो वो इसी से है। हमारा पूरा डेमोक्रेटिक जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, या कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस कल्चर से और आर्ट से प्रेरित है, उससे एक तरह से लिया गया हिस्सा मुझे लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कहीं न कहीं आपको आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा है, आपकी जीवन का एक हिस्सा कल्चर है, आप जब पढ़ते हैं, या आपके सिलेबस का एक हिस्सा हो सकता है,
या बहुत सारी डिबेट्स का एक हिस्सा हो सकता है कि कल्चर क्या है। वो डेफिनेशन, एक कल्चर की डेफिनेशन देना बहुत बहुत आसान है, उसको शब्दों में ढालना बहुत आसान है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उसको बहुत अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीकों से शब्दों में बांध सकते हैं। लेकिन अंततः ये जो कल्चर है, ये कल्चर आखिर है किसके पास, और इस कल्चर को कौन बचा रहा है, कौन इसके लिए लड़ रहा है, किसकी वजह से ये आज तक कल्चर बचा है, ये बहुत कम लोगों की नजर में है। क्योंकि जिन लोगों ने इस कल्चर को बचाया है, या जिस जिस जिन लोगों ने इस कल्चर को सहेजा है, आगे बढ़ाने का काम किया है, वो आज इस अ, इस समुदाय से या इस समाज से या देश से एक तरह से अदृश्य हो गए। वो एक बिल्कुल वंचित हाशिए पे चले गए। जो जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कल्चर हो, जिसका हम कह रहे हैं कि वो गीत है में है या संगीत में है या किसी भाषा में है या किसी भी प्रैक्टिस में है, उन तमाम कल्चरल प्रैक्टिसेस को कुछ कुछ समुदायों ने बचाया है। और वो समुदाय ने इस देश में इस कल्चर प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया, इस देश के योगदान में विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि वही समुदाय आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। वो आज एक बिल्कुल इनविजिबल है, वो दिखते नहीं है लोगों को, और वो एक तरह से एक हाशिए पे जी रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए जो पढ़े लिखे एक वर्ग है, या जो भी इस देश में निर्णायक वर्ग है, उसके लिए कल्चर एक डेफिनेशन हो सकता है, एक किसी किताब का हिस्सा हो सकता है या किसी सिलेबस का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस देश में ऐसे कई समुदाय हैं जिनके लिए कल्चर एक जीवन है, उनकी जिंदगी है, उनका उनकी उनकी आइडेंटिटी है। उनके बिना उनका जीना, उनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड है। वो उनके लिए कल्चर है। और जिन जिन लोगों ने इस कल्चर को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाया है, जिन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड का हिस्सा बनाया है, जिन्होंने कल्चर को अपनी आइडेंटिटी माना है, जिन्होंने कल्चर को अपना एक पेशा माना है, जिन्होंने कल्चर को ही अपनी एक जिंदगी मानी है, उनके लिए कल्चर के मायने अलग है, उनके लिए कल्चर की परिभाषाएं अलग है। क्योंकि वो कल्चर को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, वो उस कल्चर को जीते हैं। अपनी जिंदगी का उनका एक लाइफ का पार्ट है कल्चर उनके लिए। और उनके जीवन का हर हिस्सा कल्चर है। तो ऐसे कई समुदाय जिनका जिनका मैं आपको आगे जिक्र करूंगा, और वो ऐसे समुदाय हैं जिनकी जिनकी जिंदगी का हर हिस्सा कल्चर है। उनकी हर चीज से कल्चर झलकता है। चाहे वो बोलते हैं, उनकी भाषा में कल्चर है, चाहे वो कहीं जा रहे हैं, उनकी हलचल है, उनका जो मूवमेंट है, वो उनका एक कल्चर का हिस्सा है। या वो कोई गीत गाते हैं, ये उनका हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। वो खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, वो उनके उस कल्चर का हिस्सा है। वो किस तरह के घर में रहते हैं, किस किस तरह की झोपड़ी में अपना जीवन बिताते हैं, वो उसका कल्चर का हिस्सा है। वो अपने घर को कैसे सजाते हैं, वो किस तरह के मांडने रचते हैं, किस तरह की अपने घर की लिपाई पुताई करते हैं, वो उसके कल्चर का वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। वो अपने आप को कैसे सजाते हैं, किस तरह के वो आभूषण पहनते हैं, किस तरह की उनका जो वेश है, ड्रेस है, वो किस तरह का उनका वेश है, किस तरह के उनके आभूषण है, किस तरह से अपने आप को सजाते हैं, वो उनकी एक कल्चर का हिस्सा है। किस तरह उनके पुरुष का एक ड्रेस कोड होता है, किस तरह से महिलाओं का अपना एक उनका पहनने का एक कपड़े पहनने का अपना एक तरीका होता है, वो सारा कल्चर का हिस्सा है। किस तरह से महिलाएं अपनी बालों को किस तरह से गूंथा जाता है, किस तरह से वो अपनी केश सज्जा करती है, किस तरह से उनके हाथों पे या पैरों पे गुदाने की परंपरा है, कैसे वो अपने चित्रों को अपने शरीर पे गुथाते हैं, जो आप आजकल हम टैटू कहते हैं। वो उनका पूरा एक तरह से उनकी जिंदगी या उसकी उस कल्चर का हिस्सा है। तो एक तरह से जिसको हम किताबों या सिलेबस में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये समुदाय उस कल्चर को का एक जीवंत रूप है, वो उसको एक जिंदगी का हिस्सा मान के जीते हैं। और ये समुदाय, बहुत समुदाय है इस देश में, ऐसा नहीं है कि ये समुदाय, लेकिन ये दुर्भाग्य, मैंने पहले ही कहा कि ये विजिबल नहीं है, किसी की नजर में नहीं आते हैं। और ये कहीं न कहीं एक अदृश्य पर्दे के पीछे कहीं न कहीं ऐसे भूले बिसरे समुदाय हो गए हैं
या जो बिल्कुल समुदाय समाज के ऐसे हाशिए पे चले गए जहाँ पे उनको मेन फ्रंट में या एक तरह से मेन स्ट्रीम में लाना बहुत मुश्किल है। उनके कल्चर को शायद अप्रिशिएट किया जा सकता हो, करते हैं लोग अलग अलग ढंग से, लेकिन उन कम्युनिटीज की जिंदगी को अप्रिशिएट नहीं करते, वो किस हाल में जीते हैं ये बहुत से लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। और ऐसे समुदाय कोई इक्के दुक्के समुदाय नहीं है। यदि हम ऐसे समुदाय जिन्होंने इस कल्चर को बचाया है, जिन्होंने इस कल्चर से अपनी पहचान को सुरक्षित किया है, इस देश को, इस कल्चर को दिया है, वैसे समुदाय यदि हम हमारे राजस्थान में यदि हम देखें तो हमारे राजस्थान में से 32 जातियां हैं, और पूरे देश में देखें तो 600 से ज्यादा जातियां ऐसी है, और पूरे देश की पॉपुलेशन को देखें तो लगभग 14-15% पॉपुलेशन है जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जीने वाले लोग हैं, जिनका पेशा, जिनकी जिंदगी, जिनका सब कुछ कल्चर पे डिपेंड है, और उन्हीं की विरासत और उन्हीं की पहचान से इस देश की के कल्चरल हिस्से को जाना जाता है। तो वो कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है, लेकिन चूंकि ये समुदाय की आवाज नहीं है, इस समुदाय को किसी ने ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो हो सकता है कि इस समुदाय के कल्चर को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो गया है, कल्चर को कहीं ना कहीं स्पेस मिल गया है, लेकिन इन जिन लोगों ने इस कल्चर को बचाया है उन समुदायों को अभी तक वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, उन समुदायों को अभी तक वो स्पेस मुझे लगता है नहीं मिला है। मैं कुछ कुछ समुदायों को आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों ने सुना भी होगा इन समुदायों के बारे में, लेकिन ऐसे 500 से 600 से ज्यादा समुदाय है, लेकिन कुछ कुछ समुदाय जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ताकि समझ में आए कि ये कल्चर को कैसे जीते हैं और कैसे उस कल्चर का हिस्सा वो समुदाय है। तो ये एक कालबेलिया समुदाय है, और कालबेलिया स्नेक चार्मर जिसको कहते हैं, सपेरा भी उसको बोलते हैं, और ये समुदाय की आइडेंटिटी है कि वो सांप को पकड़ते हैं। कालबेलिया शब्द का मतलब ये कि काल, काल को मतलब, काल मतलब एक तरह से मौत है, मतलब हम हिंदी शब्द में उसको समझे तो मौत को स्वीकार करने वाला है। क्यों स्वीकार करने वाला है? क्योंकि जो सांप है उसको एक तरह से प्रतीक माना जाता है कि वो काट लेगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन सब लोग सांप से डरते हैं, लेकिन कालबेलिया समुदाय उस सांप को पकड़ता है, उस सांप से को नचाता है, और उस सांप की सारे नॉलेज है उसके पास। वो सांप का किस तरह का सांप होगा, किस तरह की, किस सांप में कितना जहर होगा, उस जहर को कैसे यूज करना है, किस कैटेगरी के सांप को कैसे पकड़ना है, ये सारा इंडिजिनियस नॉलेज उस कम्युनिटी के पास होता है, और वो सांप से ही उसकी आइडेंटिटी है। यदि किसी भी जगह सांप है तो आज भी यदि किसी के घर में सांप घुस गया है तो सबसे पहले यदि याद किया जाएगा तो उस कालबेलिया समुदाय को याद किया जाएगा। और यही समुदाय की जो महिलाएं हैं उनका नृत्य आपको बहुत बहुत फेमस उनका डांस फॉर्म है, और उस डांस फॉर्म को आजकल वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कर लिया गया है यूनेस्को ने। लेकिन वो समुदाय की जो महिलाएं हैं वो डांस परफॉर्म करती है, और उसकी डांस की जो आप यदि बहुत बारीकी से उसको यदि कोई देखेगा तो वो सांप जैसे नाचता है वैसे वो महिलाएं नाचती है। तो वो बिल्कुल उस जानवर या जो वन्य जीव है उसके प्रति उसकी एक समानता, दयालुता, करुणाता उसके प्रति झलकती है, और वो उसकी जिंदगी का एक तरह से हिस्सा है। और ये समुदाय बिल्कुल अभाव में जीने वाला समुदाय, ऐसा नहीं कि बहुत रिच समुदाय है या बहुत वेल सेटल्ड समुदाय, ऐसा नहीं है। ये समुदाय बिल्कुल मुश्किलों में जीने वाला समुदाय है, अभाव में जीने वाला समुदाय है, पीड़ा में जीने वाला समुदाय है। लेकिन उस तरफ से आप देखोगे तो ये समुदाय अपनी सारी पीड़ा को, अपने सारे अभावों को, मुश्किलों को भूलते हुए उन्हीं अभाव और पीड़ा को एक गीत में बांध देता है, और वो महिलाएं उन्हीं गीत पे नाचती है, सारी पीड़ाएं भूल जाती है, और ये अपनी सारी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी को एक गीत में बांधती है, और उसी स्ट्रगल को अपना गीत बनाकर वो गाते हैं, और वही वही कल्चर बनता है जब वो अपना अभाव को, जो अपने अभाव या मुश्किल है उसको सेलिब्रेट करना सीख जाए, उस संघर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, और वो उसका कल्चर का हिस्सा बनता है। और उनके गीतों को यदि हम अभी देखते हैं तो वो सारे गीत उनकी जिंदगी का एक अनुभव है। वो बहुत रोमांटिसाइज गाने नहीं है कि बहुत रोमांटिसाइज करके किसी को गाए हुए हैं, वो जो अपनी जिंदगी में झेलते हैं उन्हीं को वो अपने गीतों में बांधते हैं। और मैं 2-3 लाइन उस कम्युनिटी का जो बहुत फेमस गाना है उसका मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। उनका एक गाना है
भगोलिया। भगोलिया जो उनका उनका एक आइडेंटिटी है, कालबेलिया कम्युनिटीज ही है, वो भीख मांगने का काम करते हैं। और भगोलिया एक बर्तन को बोलते हैं जिसमें भीख मांगने का, भिक्षा पात्र जिसे हम कह सकते हैं, उसको भगोलिया बोलते हैं। और वो भगोलिया जो वो भिक्षा पात्र है, वो उनके कल्चर का एक हिस्सा है। जहां भी आपको कालबेलिया कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, वो कहीं न कहीं भिक्षा पात्र के जरिए किसी के घर पे भीख मांगते हुए या इस तरह में दिखेंगे। और वो गीत गा के, उनकी अपनी पीड़ा वाले संगीत को गा के भिक्षावृत्ति का काम एक तरह से करते हैं। और वो उसमें वो कह रहे हैं कि एक जब एक गीत उन्होंने उसमें है उसका, कि जब वो किसी प्रेमिका के घर उसका प्रेमी आता है और उस समय बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, और क्योंकि कालबेलिया समुदाय के पास तो अपना कोई घर होता नहीं, वो बहुत छोटी सी एक झोपड़ी में बैठी है वो लड़की। और अचानक उसका प्रेमी आ जाता है, तो वो क्या कहती है अपने प्रेमी के लिए, वो उन्होंने बांधा इस गीत में। अरे भगोलियो भर देनी बाई मारे उदारिये आता रोई राम। अरे भगोलियो भर देनी बाई मारे उदारिये आते रो रे राम। अरे आयोड़ो सजनियों झुको जावे मारा राजी। अरे आंधी रे चाले रे जिबड़ा बायरियो चले रही राजी। आंधी रे चले रे ये जिबड़ा बायरियो चले लई राजी। अरे भोगलियो भर देनी ये बाई मारे उदारी याटे रुई राम। अरे आयोड़ो ये सजनियो दुखो जावे मारा राज। वो एक लड़की, अचानक उसका प्रेमी आ जाता है, वो एक झोपड़ी में बैठी है, बहुत हवाएं चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और अचानक उसका प्रेमी आ जाता है और उसके घर में उसको खिलाने को कुछ नहीं है। तो वो कह रही है कि मैं वो जो भिक्षा पात्र लेके अपने पड़ोसी के घर जा रहा हूँ, वो किसी से विनती कर रही है कि मुझे भगोने में थोड़ा आटा दे दो, ताकि मेरा प्रेमी है वो भूखा चला जाएगा। और वो वर्णन कर रही है कि इतनी आंधी चल रही है, इतना तेज तूफान चल रहा है, इतनी तेज बारिश चल रही है, मेरा चूल्हा भी शायद नहीं जल पाएगा, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे एक आटे का वो भिक्षा पात्र में डाल दो, ताकि मैं अपने प्रेमी को खाना खिला सकती हूँ। तो ये उसका कल्चर है कि वो, उसके पास रहने को घर नहीं है, इतनी अभाव में वो जीते हैं, लेकिन उन्हीं अभावों को वो सेलिब्रेट करके इन गीतों में बांध के अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से दूसरा समुदाय एक बंजारा समुदाय जिससे मैं आता हूँ। ये समुदाय घूमने फिरने का काम करता है। पूरे जब से ये चला, ट्रांसपोर्ट का जब साधन नहीं थे, तब ये लोग बैलों के जरिए, ऊंटों के जरिए उन पे अलग अलग तरह के जो सामग्रियां हैं उनको लाद के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का काम करते थे। और ये कम्युनिटी की खासियत है कि ये बहुत सारी संस्कृतियों को, बहुत सारे कल्चर्स को अपने आप ने एडोप्ट किया है इन्होंने, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। इन्होंने किसी सीमा को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने एक दूसरे से दूसरे देशों को बांधा। आज भी यदि हम देखेंगे तो कई सारे बंजारे यहाँ से गए और रोमा, यूरोप कंट्रीज में गए, जिनको जिप्सी के नाम से जाना जाता है, जिनको रोमा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देश की सीमाओं को लांघकर रास्ते बनाए, व्यापार के एक तरह से नुक्से दिए। जो आज का व्यापार है उसके बहुत सारे से तौर तरीके दिए। इनके पास उनका अपना एक इंडिजिनियस नॉलेज था कि कौन से रास्ते होंगे, उन रास्तों की उन्होंने खोज की, पहाड़ों के बीच में रास्ते बनाए, और एक व्यापार का कल्चर इस समुदाय को दिया। और बहुत ही इंडिजिनियस नॉलेज इनके पास है। इनकी भाषा अपने आप में एक अलग अलग तरह की भाषा है। भाषा में भी भाषा है। एक भाषा हम बोलते हैं, हमारी बंजारी भाषा है। फिर एक भाषा हम बोलते हैं जो ग्रामीण लोग बोलते हैं, वो अपनी भाषा है। फिर हमारी बंजारी भाषा में भी एक और गुप्त भाषा, जिसको सीक्रेट लैंग्वेज बोलते हैं, वो है जिसके जरिए हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बचने का कोशिश करते हैं। और ये समुदाय भी कल्चरल समुदाय, ये हर समुदाय जो है वो पूरा का पूरा समुदाय, उसकी सारी प्रैक्टिस कल्चरल प्रैक्टिसेस है। और वो भी, उसका भी एक गीत मैं आपको 2-3 लाइन उसकी भी सुनाऊंगा। ये कैसे जब बंजारे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, और ये हर
कल्चर को अपने आप में एडॉप्ट करते थे, एक कल्चर को दूसरी जगह ले जाने का एक ट्रेवल भी करते थे। वो केवल सामग्री का ट्रेवल नहीं करते थे, वो कल्चर का भी ट्रेवल करते थे, ताकि इस यहाँ से ले जाके दूसरी जगह तक उस कल्चर को भी पहुंचाते थे। और कितना विश्वास उनके प्रति जो नॉन बंजारा कम्युनिटी थी उनमें होता था, और वो लोग वेट करते थे कि कब बंजारे आएंगे। जैसे काबुली वाला की कहानी बहुत फेमस है। पारस भाई म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, आप कहानी। हेलो। अच्छा, हाँ, लास्ट 5 सेकंड मिस किया, पर आप वो कह रहे थे कि कहानी। मेरा शायद फोन आ गया था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिटी है, पारस भाई फिर से म्यूट हो गए हो आप। Folks, 2 minutes. I'll just finish the translation of whatever he said. So for 2 minutes. हाँ, अब आगे बात। तो कह रहा था कि ये जो ब्रिटिश है, ये केवल किसी मिडिल का ऐसी फैमिली का ही पढ़ा सारी पारस भाई आपका आवाज टूट टूट क्या रहा है अब। पहले बेट एकदम ठीक आ रहा था। हेलो। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से। आई डोंट नो, मुझे ही सिर्फ आ रहा है सब। No, इट्स it's coming. अब म्यूट हो गई। बहुत लैग है आपकी आवाज में, और बहुत ही बैकग्राउंड में भी, मतलब ऐसा खराश आ रही है बिल्कुल पीछे। क्लियरली नहीं आ रहा है, पहले एकदम क्लियरली आ रहा ठीक आप अपना इंटरनेट एक बार देख लीजिए, है। शायद हाँ, कनेक्टिविटी का इशू। और हम हमारा वीडियो कब करते हैं अगर बैंडविड्थ इश्यू हो तो। आप पारस भाई ऑन करके अब बताइए। Sorry folks for the logistical challenge. Okay, I'm calling and fixing this. हाँ परस भाई, हेलो। हाँ पारस भाई, अब एकदम ठीक से आ रहा है। ठीक है। सॉरी। तो मैं कह रहा था कि ये जो सारी कम्युनिटीज है, ये कम्युनिटीज केवल अपने जो ट्रांसपोर्ट करते थे ये लोग पहले, तो केवल मटेरियल का या किसी सामग्री का ही ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे, ये उस कल्चर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और उस वजह से बहुत सारे जो समुदाय थे इनका इंतजार करते थे, इन पे एक विश्वास होता था, उन पे एक फेथ होता था कि ये कम्युनिटीज कब आएगी, क्योंकि वो उसका कल्चरल के एस्पेक्ट को स्वीकार करते थे, और अपने गीतों में उन उन चीजों को कहीं के समाज ने उसको स्वीकार भी किया। जैसे बंजारों पे एक बहुत फेमस गीत लोग आज भी उस कल्चर को गाते हैं। वो कहते हैं कि जो बंजारा है वो भाई के समान है, और वो बिल्कुल समानता और इक्वलिटी के साथ व्यवहार करेगा जब भी आएगा तब, और उसका इंतजार वो करते हैं, और उसको भाई के तौर पे मान के उसको स्वागत करने की कोशिश उस कल्चर का हिस्सा माना जाता था। उसमें उसमें एक गाना है कि हरे बीरो बन जा रो रे मोरू ने
लागे प्यारो रे। अरे आयो रे धोना वालो देश, वीरो बीण जारो रे। अरे आमायामली रे मोरू बाइला रे रया। ओ आमायाम ली रे मोरू बाइला रे रया। अरे आगे रे आकड़लिया वालो देश, बीरो बीण जारो रे। ओ बीरो बीण जारो जी मोरू ने लागे प्यारो रे। अरे आगे रे ढोरा वालो देश, बीरो बीण जारो रे। तो ये एक तरह से उसको भाई मान के एक कल्चर का हिस्सा उन बंजारों के लिए था। ऐसे कई समुदाय और भी हैं जिनकी वजह से इस कल्चर को पहचाना जाता है। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध समुदाय है लंगा और मांगणियार, आप लोगों ने उसके बारे में जरूर सुना होगा। जो भी, और उन लोगों ने केवल अपने देश में नहीं, अपनी देश के अलग अलग राज्यों में ही नहीं, दुनिया में हमारे संस्कृति और संगीत को उन लोगों ने पहुंचाया है। और वो समुदाय की खासियत है कि वो समुदाय खुद मुस्लिम समुदाय है, लेकिन वो सारे जो गीत संगीत है उनका वो हिंदुओं के लिए गाते हैं। तो ऐसा समुदाय जिसका, जो इतना सांस्कृतिक विरासत वाला समुदाय, जो हिंदू और मुसलमान की एकता का आज के तौर पे प्रतीक बना हुआ है। और वही हमारी विरासत है, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विरासत है कि हम जीते मुस्लिम में हैं लेकिन गाते हिंदुओं के लिए हैं। वो समुदाय, वो जो कल्चर है, वो इन्हीं समुदायों के पास है। वो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको आज पहचानने की एक तरह से जरूरत है। उस विरासत को रिकॉग्नाइज करने की एक तरह से जरूरत है। और इन्होंने पूरी दुनिया में कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पे भारत को पहचान एक तरह से दिलाई है। तो वो हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा उनकी प्रैक्टिस में अपने आप में हिस्सा है, उनका संगीत और गीत इसका हिस्सा है। और ऐसे कई और समुदाय है जिनमें आप नट समुदाय जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को करता है, वो आपने देखा होगा कई बार किसी फिल्मों में या शायद लाइव भी कहीं देखा हो। एक नट जो होता है वो रस्सी पे चढ़ के बांस को पकड़ के वो चलता है रस्सी पे, वो होता है। बहरूपिया जो होता है वो अलग अलग रूप बना के अपने कल्चरल चीजों के जरिए अलग अलग स्वरूप बना के वो प्रैक्टिस में रहता है। ऐसे कई कंजर, कालबेलिया, बंजारा, गाड़िया लोहार, रेबारी, कई तरह के समुदाय हैं। और इस तरह से ये समुदाय लगभग 600 से ज्यादा समुदाय हैं जिन्होंने इस कल्चरल विरासत, कल्चरल हेरिटेज को जी रहे हैं अभी भी, जिन्होंने जो इसको बचा के रख रहे हैं। और ये जिनके पास आज भी, और ये ऐसे समुदाय है जिनके तौर पे हम कल्चर को जाना जाता है। इस देश के डेमोक्रेसी के बहुत प्रगतिशील लोग उस कल्चर को बहुत रिकॉग्नाइज या सिलेबस का हिस्सा बन गया हो, या बहुत बड़ी टीवी डिबेट का या अलग अलग ढंग से जाके हिस्सा बन गया होगा ये कल्चर। लेकिन उसके पीछे का यदि हिस्सा आप देखेंगे तो ये जो समुदाय जिन्होंने इस कल्चर को बचाया या बढ़ा रहे हैं आगे, ये समुदाय ऐसे हैं जिनके पास आज भी घर नहीं है रहने की। आप यदि शहर में गुजरेंगे, जिन कल्चरल कॉमन्स की बात कर रहे हैं, जो कल्चर, जो कॉमन्स की हम बड़े तौर पे बात कर रहे हैं, और जिस कॉमन्स, कल्चरल कॉमन्स को जिन्होंने बचाया है, यदि उनको आप देखोगे, यदि बेंगलोर की सड़क पे आप गुजरेंगे तो आपको फुटपाथ पे जो लोग मिलेंगे वो इसके दस्तावेज है। वो उनके वही लोग हैं जिन्होंने इस कल्चर को बचाया है। जो सड़क के किनारे कहीं आपको मिल जाएंगे, जिनके पास आज भी रहने को घर नहीं है, जिनके पास पहचान के दस्तावेज नहीं है, जिनको हम कह रहे हैं कि इस देश के नागरिक भी है या नहीं है, वो उसके लिए भी मोहताज है। कि हम कितना एनआरसी, सीए की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 14-15% लोग इस देश में रहते हैं जो इसी देश के नागरिक है, इसी देश का हिस्सा है, इसी देश का कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज भी उनके पास, बहुत से लोगों के पास अपनी पहचान के दस्तावेज, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं होते हैं। ऐसे कई समुदाय है राजस्थान के, और कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जिनकी वजह से, जैसे कालबेलिया समुदाय मैंने आपको कहा, ये समुदाय की महिला गुलाबो है जो वर्ल्ड फेमस डांसर है। जब वो नाचती है तो सारे लोग ताली बजाते हैं, लेकिन उसके समुदाय से जब कोई डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसको दफन करने के लिए कोई जमीन नहीं देता है। और ऐसे समुदाय कई बार उन्होंने अपनी ही झोंपड़ी में उस लाश को दफन करते हैं। और ये एक मैं बहुत एक तरह से बहुत निराशा और एक गुस्सा भी है
समाज के प्रति, कि ऐसे समुदाय जिन्होंने इस कल्चर को बचाया है, जिया है, इस हेरिटेज को बचाया है, ऐसे समुदाय जो लोग हैं वो जिंदा और मुर्दा एक साथ रहने को मजबूर है। जिंदे लोग ऊपर रहते हैं और मुर्दे लोग उसी झोपड़ी में उनको दफन के रहते हैं। तो ऐसे समुदाय की स्थिति ये है कि वो मरने के बाद भी उनको कोई जमीन देने को तैयार नहीं है, उनके बच्चों की कोई परवरिश का ठिकाना नहीं है, उनकी हेल्थ का, उनकी एजुकेशन का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये लोग आज है कल कहाँ चले जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। उस वजह से उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। कई तरह की उनकी जो लाइवलीहुड है उस पर खतरा है, और वो उस खतरे की वजह से कई तरह से के अटैक उनकी वजह से, इसलिए उनका लाइवलीहुड भी एक तरह से खत्म हो गया है। ये इतने मुश्किलों में, इतनी परेशानियों में रहने के बाद ये समुदाय है, वही समुदाय है जिनके पास आज इंडिजीनियस नॉलेज है, उनके पास पशुपालन का नॉलेज है, कैसे पशुओं को रखते हैं, कैसे पाला जाता है, पशु का क्या कल्चर है वो ज्ञान उनके पास है, इंसानियत के साथ जीने का सलीका उनके पास है, कैसे एक भाईचारा के, मानवता के तौर पे दिया जाता है वो तरीका उनके पास है। उनको एक रोटी मिलेगी, वो भीख मांग के लाते हैं, और उनको एक रोटी मिलती है तब भी उसके 4 टुकड़े बना के वो बांट के खाते हैं। तो जो लूट का कल्चर है उसके बिल्कुल विपरीत उनका जीने का उनका कल्चर है। उनका कितने भी अभाव में रहे वो लोग, लेकिन हमारे लिए, इस देश के लिए वो गीत भी गाते हैं, वो नाचते भी है, उनके पास थिएटर का भी ज्ञान है, वो प्रदर्शन भी करते हैं। वो मौसम को जानने वाले लोग हैं, मौसम विज्ञानी है एक तरह से। उनके पास वो नॉलेज होता है जो बता देते हैं कि कब बारिश आने वाली है आगे। उनके पास रास्तों को खोजने का ज्ञान है, जब शायद आज तो बहुत तौर तरीके आ गए हैं, लेकिन उनके पास कौन से रास्ते से गुजरेंगे, कहाँ पे उनको खतरा है और कहाँ पे नहीं है, ये उसका भान उन लोगों के पास है। उनके पास हस्तशिल्प का ज्ञान है, एक तरह से उनके पास हैंडीक्राफ्ट बनाने का नॉलेज है, कैसे वो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं। वो लोग जादूगर हैं, वो लोग पशुओं को नियंत्रण कर लेते हैं। आज हमारे पास यदि कोई सांप आ गया तो पूरा हिल जाता है, लेकिन उनको पास ऐसे जहरीले जानवरों को कंट्रोल करने का ज्ञान है। उनके पास भालुओं को पकड़ने का ज्ञान है, वो बंदरों को नचा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास इंसानों को कंट्रोल करने का, इंसानों को भी सलीका सिखाने का जरिया नहीं है, लेकिन ये ऐसे समुदाय है, वो समुदाय जानवरों को भी इंसानों की भाषा सिखा देते हैं, और वो उनके अपने बस में लाके उनको भी इंसानियत की भाषा सिखाने का काम ये लोग करते हैं। और ये लोग जबान के जादूगर है, इनके पास और कुछ नहीं है। जो उनका एक तरह से जबान है, वही उनका पेशा है, उसी से उनकी आजीविका चलती है। तो वो जबान के जादूगर है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। ये जो समुदाय है, कई समुदाय ऐसे हैं जो है मुस्लिम लेकिन हिंदू की प्रैक्टिस करते हैं, कई ऐसे समुदाय जो अपने आप को हिंदू मानते हैं लेकिन मुस्लिम की प्रैक्टिस करते हैं। जिनको आज की राजनीति, जिनको आज की जिस तरह की जो खतरे आज हम देख रहे हैं इस संविधान पे, या जिस जाति प्रथा की वजह से जो खतरे मंडरा रहे हैं, उन सब खतरों से दरकिनार वो आज भी जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी मूल संस्कृति है, उसको आज भी प्रैक्टिस में जीने की कोशिश करने वाले समुदाय हैं। ये भारत की जो कोर हमारा एक तरह से वैल्यू है हमारे संविधान की, ये देश विविधता, बहुलता और विभिन्नता वाला देश है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं जिनको ये जीते हैं। हम शब्दों में पढ़ सकते हैं कि हम राइट टू डिसेंट में विश्वास करते हैं, हम डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग डाइवर्सिटी, डिसेंट और वो जो बहुलता है, प्लूरिटी है, उसको जीने की, उसको उनके जीवंत उदाहरण का काम ये लोग, और ऐसे लोगों पे, इन लोगों ने इस कॉमन्स को, इस कल्चर को बचाने का काम किया है। ये उस कल्चर के प्रतीक है। लेकिन यदि हम देखेंगे इन समुदायों का, तो इन पे खतरे भी बहुत हुआ है। और ये खतरा इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों जो हम अगला जो हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो कल्चरल कॉमन्स है, ये कैसे आया, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरह से जिन कम्युनिटीज है उनके नजरिए से, और उस कल्चर को कैसे, क्या क्या खतरे उस पर आए हैं, कैसे उसको खत्म किया जा रहा है, और क्यों आज अकाउंटेबिलिटी की उस पर जरूरत है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की को उसमें कैसे कोर एरिया में रखते हुए इस कल्चर को बचाने का काम बहुत जरूरी है। तो ये जो जिन कम्युनिटीज की बात हम कर रहे हैं, ये सारी कम्युनिटीज
कल्चरल आइडेंटिटी वाली कम्युनिटीज है, लेकिन इन पे बहुत बड़ा खतरा आया। और वो ये खतरा जो आया है, वो खतरा केवल इस कम्युनिटी पे आया है। वो मान नहीं चल सकते कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि कम्युनिटी खत्म हो गई तो ये सारा कल्चरल खत्म हो जाएगा, कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो उस कल्चर को बचाना है तो उस कम्युनिटी को भी बचाना पड़ेगा। और इस पे क्या खतरे आए हैं उसका हम 2-4 एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। आजादी से पहले क्या खतरा इस कल्चर पे आया, इस कल्चरल कम्युनिटीज पे आया? वो सबसे पहले अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि ये बहुत ही कल्चरल एस्पेक्ट्स वाले लोग थे, ये कल्चर को ट्रेवल करने वाले लोग थे, और बहुत ही मैसेंजर थे ये लोग, एक तरह से एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने में, भाषा को, बोली को, सारी संस्कृतियों को। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने 1871 में 1971 में एक लॉ बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और उस कानून के जरिए इन कम्युनिटीज को कंट्रोल करने का कोशिश किया। और उस कानून का और पक्ष समझ में आए ना आए, लेकिन एक जो प्रोविजन था उसका, वो ये प्रोविजन था कि इन कम्युनिटीज में जिस भी बच्चे ने या व्यक्ति ने जन्म ले लिया है, वो बाय बर्थ क्रिमिनल है। और उसको बाय बर्थ क्रिमिनल घोषित कर दिया, वो जराइम पैसा जिसको हम कहते हैं, या जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। तो उसकी वजह से लोग छुपने लगे, अपनी कल्चरल प्रैक्टिस को छोड़ने लगे, क्योंकि अपनी पहचान को छिपाने लगे उस डर की वजह से। तो उससे बहुत बड़ा खतरा आया। और जो एक इंडिजिनियस नॉलेज या जो इनके पास विधाएं थी, उस विधाओं पे एक बहुत बड़ा खतरा अंग्रेजों के जमाने में आया। और बहुत सारी ऐसी विरासत, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, वो एक तरह से उस डर की वजह से खत्म। तो वो एक संघर्ष था, अंग्रेजों का राज था, वो तमाम चीजें थी। लेकिन आजाद भारत के बाद भी ये लोग, इनके कल्चरल को सुरक्षित नहीं किया गया। ये जो जराइम पैसा एक्ट था, ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, ये हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 5 साल तक ये कानून अस्तित्व में रहा। और 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को खत्म किया और डीनोटिफाइड इनको घोषित किया। तो आजाद भारत में भी ये लोग एक तरह से अपराधी के तौर पे जिए। वो एक तरह से जो स्टिग्मा है इन पे अपराधी होने का, वो आज भी स्टिग्मा झेल रहे हैं, उस स्टिग्मा के साथ जीने को मजबूर है। आजादी के बाद क्योंकि इन कम्युनिटीज की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, और जिसकी वजह से इनका कल्चर बचा था, कालबिलिया को सांप पकड़ना था, एक मदारी जो होता है, मदारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम समुदाय में, वो बंदर को नचाने का काम करता है, भालू को नचाने का काम करता है। ऐसे कम्युनिटीज जो अपनी लाइवलीहुड भी चलाते थे और उसकी वजह से इस कल्चर को भी बचा रहे थे, उनके लिए कानून बन गए। और वो कानून बना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन गया, कि वनों के जीवों को बचाना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये कानून बहुत अच्छा है, जीव बचने चाहिए। वो भालू और बंदर तो बच गए, लेकिन जिसकी पहचान जिस समुदाय के साथ जुड़ी थी, मदारी के साथ, वो मदारी आज कहाँ है ये किसी को पता नहीं। वो किन हाल में जी रहा है ये किसी को पता नहीं। बंदर, भालू, सांप ये बच गए, लेकिन जिनके जरिए जिनकी आइडेंटिटी थी, मदारी हो या वो बाजीगर हो या सपेरा हो, वो समुदाय आज किस हालत में है उसको कोई नहीं जानता है। वो सारी कल्चरल प्रैक्टिस एक कानून के जरिए खत्म हो गई। फिर आपका एक कानून बना आदतन अपराधी अधिनियम, जिसकी वजह से इन समुदाय पे एक स्टिग्मा लगाया गया कि आप जन्मजात बाय बर्थ क्रिमिनल है। तो वो एक प्रैक्टिस पहले से हो रही थी। तो जब भी कहीं भी चोरी होती है तो सबसे पहले इन्हीं कम्युनिटीज पे अटैक किया जाता है। तो उस वजह से ये कम्युनिटीज जो है वो पहचानी जाती है अपने कल्चर की वजह से। तो इन्होंने इन लोगों को लगा कि यार इसी वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसी वजह से हमें समाज से अछूत माना जा रहा है, इसी वजह से सरकार हमें पीड़ित कर रही है, तो हम उस कल्चरल प्रैक्टिस को ही छोड़ दें। तो वो उस कल्चरल प्रैक्टिस को छोड़ के अपना दूसरा पेशा, अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जीना उन्होंने शुरू किया। तो इसकी वजह से उस कल्चर पे बहुत बड़ा अटैक उस कानून के जरिए हुआ। फिर एक कानून और बना, पशु क्रूरता अधिनियम, जिसमें कहा गया कि आप पशुओं पे कोई क्रूरता नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इंसानियत की बात है, लेकिन आपने पशुओं को बचाने के तो जतन कर ली, लेकिन ऐसे 14 करोड़ लोग हैं, 14% 15% लोग इस आबादी का, जो इस पशुओं के सहारे जीते थे, जिनकी जिंदगी वो आधार था, वो पशु बच गए। लेकिन इन कम्युनिटीज के बारे में नहीं सोचा गया। उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उनको डॉक्यूमेंट करने का, उनको बचाने का, उनको आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं सोचा गया। फिर जो बंजारे कम्युनिटीज हैं, साखिया कम्युनिटीज हैं, गाड़िया लोअर कम्युनिटीज हैं, ये कम्युनिटी बेलों का बिजनेस करते थे और
बेल की कितना कैसे उनका आप कभी मतलब बहुत बार मैंने महसूस किया उनका, एक बेल यदि सड़क पे चल रहा है तो 10-15 मीटर दूर खड़ा होकर वो बंजारा बता सकता है कि ये बेल कितने इसके कितनी, यदि काठी का है, ये इसमें खेती करेंगे तो कैसे इसकी खेती हो सकती है। इतना नॉलेज उनको पशुओं का किसी एनिमल हस्बेंड्री का जो डॉक्टर है उसको भी एक्सपर्ट है, उसको भी नॉलेज नहीं होगा जितना नॉलेज इन समुदायों को है। लेकिन 1995 में राजस्थान में कानून बना, गोवंश प्रतिशत अधिनियम, और उसके जरिए ये पूरा इनका ठप हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि समुदाय ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये समुदाय कल्चर को शायद हो सकता है उन्होंने एडॉप्ट कर दिया, सबने ताली बजा दी, मंच पे जब गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं, तब सब ताली बजाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरते हैं तो उनसे हाथ मिलाना कोई पसंद नहीं करता, उनके साथ छुआछूत होती है, एट्रोसिटीज होती है, उनको बसने के लिए जगह नहीं दी जाती है, उनको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया और अलग अलग कानून बना के उनकी सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को खत्म किया है। तो ऐसे ऐसे जो लोग थे जिनका कानून के जरिए खत्म करने की कोशिश की, समाज ने उनको हाशिए पे धकेल के उनके कल्चर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ये समुदाय, इनकी संस्कृति पे खतरा हुआ है। ये सांस्कृतिक रूप से, ये और रूप से शायद गरीब हो सकते हैं, चाहे उनके पास घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, लेकिन ये कल्चरल रूप से बहुत रिच है। और इन्होंने किसी भी परिस्थिति में देखे थे, सरकार ने उनको प्रताड़ित किया हो, समाज ने उनको प्रताड़ित किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कल्चर को सुरक्षित करने का एक काम किया है, वो उस पर डटे हुए हैं और वो एक आंदोलन का हिस्सा बन गए लोग। आज जो है एक्टिविज्म के सेक्टर में भी यदि जाए तो कल्चर का बहुत बड़ा एस्पेक्ट इनसे लिया गया है। और ये जो सारे समुदाय है, ये इन्होंने अपनी कला को ही अपना संघर्ष बना लिया है और उस कला को संघर्ष बना के इसको आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में वो लोग लगे हुए हैं। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या एक फोक व्यक्ति या जो समुदाय जो कल्चरल प्रैक्टिस में जीता है, उसके नजरिए में कल्चर क्या हो सकता है, वो समुदाय क्या हो सकता है, वो मेरा एक सोच मैंने आपके सामने रखा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम कॉमन्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कॉमन्स, नदी कॉमन्स है, एक जंगल कॉमन्स है, या डिजिटल की बात हम पिछले सत्र में, वो एक कॉमन्स है, जंगल कॉमन्स है, पेड़ पौधा, ये सारी जो सृष्टि है वो हम उसको कॉमन्स का एक हिस्सा मानते हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सरकार के अलग अलग पॉलिसीज में भी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितनी भी कला है, संस्कृति है, नृत्य है, संगीत है, इंडिजिनियस नॉलेज है, जितने भी परफॉर्मेंस आर्ट्स है, ये चाहे हैंडीक्राफ्ट का उनको नॉलेज है या जितना भी तरह का उनका ज्ञान है, ये सारा कॉमन, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये ही हमारे देश की पहचान को सुरक्षित करने वाला की विधा है। तो ये जो जितना भी रिवाज, खाना पीना, जितना भी उनके कस्टम्स है, जितना भी उनके तौर तरीके हैं, वो सारा उस कॉमन्स का हिस्सा है और उसको हमें कॉमन्स की डेफिनेशन में लाना पड़ेगा। यही कल्चर है, इस कल्चर को कॉमन्स बनाना पड़ेगा। और ये कल्चर केवल जिम्मेदारी इन कम्युनिटीज की नहीं है जो कॉमन्स को जी रहे हैं, इन कल्चर को जी रहे हैं। क्योंकि यदि हम देश के निवासी हैं तो हमारा सबका ड्यूटी है, क्योंकि हम यदि कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो इन कम्युनिटीज को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, इनको भी समझना पड़ेगा कि ये कैसे इन्होंने इस कल्चर को बचाया है और इस विरासत को इन्होंने बचाया है। और ये कल्चर केवल इनके काम का नहीं है, ये कल्चर यदि हम इस देश में रहते हैं तो ये सांस्कृतिक पहचान है, तो ये कल्चर हमारे लिए है, ये इस देश का हिस्सा है और ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है। इस कम्युनिटी के लिए शायद जरूरी हो कि नहीं हो, तो अपना जिएंगे जैसे भी जी रहे हैं, हजारों साल तक उन्होंने इस कल्चर को यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी में कोई बिलीव करता है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई बिलीव करता है, तो इन कल्चर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। और ये सारे यदि कल्चर को बचाना है तो इस कम्युनिटी को भी बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो देश है, मुझे जो लगता है हमारा देश या हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस कल्चर का हिस्सा है, उस कल्चर का मिश्रण है। यदि हम संविधान का एक दस्तावेज हमारे हाथ में है और यदि उस दस्तावेज में यदि कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है तो वो संविधान बिल्कुल सूखा है, वो जीवंत नहीं हो सकता। और वो जीवंत नहीं होगा तो वो संविधान जन जन का हिस्सा नहीं बन सकता। जब तक संविधान में कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल नजरिया या कल्चरल तड़का नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो जनता का
दस्तावेज नहीं बन सकता। और इसीलिए संविधान बनाने वाले लोगों ने, संविधान को लिखने वाले लोगों ने उसको उस कल्चर को उसका हिस्सा बनाया है, उन्होंने एडप्ट किया है। ये सारी जो विरासत है, चाहे वो भाईचारे की विरासत हो, स्वतंत्रता की विरासत, जो जो शब्द डाला गया है, मुझे लगता है कि आज भी घुमंतु समुदाय जो कल्चरल रूप से जीता है, वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। वो किसी देश की सीमा को स्वीकार नहीं करता है, वो कभी सरकार को भी स्वीकार नहीं करता है, वो अपने ऊपर किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल बिना दबाव के, बिना किसी तनाव के, या ऐसे बिना किसी अंकुश, वो जो जिस स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, तभी ऐसे समुदाय से आया है कि कैसे स्वतंत्रता होती है। हम स्वतंत्रता का, मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति जो घुमंतु जीवन जीने वाला है, एक दिन कोई यदि घुमंतु जीवन जिए तो उसको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता होती क्या है। वो किसी बाउंड्री को नहीं मानता है, वो अपने आप में बहुत मस्त रहने वाला व्यक्ति है, जो उसको समझ में आता है वो करता है। तो स्वतंत्रता, भाईचारा, बहुलता, ये संस्कृति जो हमारे संविधान का हिस्सा है, वो समानता का जो कॉन्सेप्ट देने वाला है, मुझे लगता है ये कल्चरल प्रैक्टिस से जीने वाले समुदाय हैं, उन्हीं समुदाय से ये कल्चरल, ये जो संविधान के जो मूल हिस्से हैं जो हमारे प्रेम्बल में लिखे हैं, ये आए हैं। और ये हमारे संविधान का एक पेज पे लिखे हुए शब्द हैं। और समुदाय इसको जीता है नहीं जीता है, लेकिन ये जितने भी समुदाय की जो बात कर रहा हूँ, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जीने वाले लोग हैं, वो इन सारे संवैधानिक मूल्यों को जीते हैं। वो भाईचारे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। वो जो विविधता वाली संस्कृति है, जो डाइवर्सिटीज है, उसको जीते हैं। आज भी उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वो उस स्वतंत्रता जो है उसको जीते हैं। वो उस समानता को जीने की कोशिश करते हैं और समानता के साथ रहने का कोशिश करते हैं। तो वो संवैधानिक मूल्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। जैसे उन्होंने कल्चर का हिस्सा बना रखा है, वैसे उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के वो अपने इस देश को एक मैसेज देने का काम करते हैं। संविधान में भी ये जो तत्व आए हैं और संविधान को भी ये बताते हैं रास्ता, और एक उसका वो जो एक तरह से उसकी प्रैक्टिसेज है संविधान में, जो मूल उसके संवैधानिक मूल्य है, उनको जीने का और उसको आगे बढ़ाने का काम ये समुदाय करता है। क्योंकि ये जो जितने भी संवैधानिक मूल्य है, ये सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स के बिना अधूरे हैं। और जो कल्चर को जीता है वही संवैधानिक मूल्यों को जीने की कोशिश भी करता है। और आज यदि संविधान पे कोई खतरा होगा तो सबसे ज्यादा खतरा इन कम्युनिटीज पे होगा, क्योंकि ये कम्युनिटीज यदि इनकी पहचान और इनकी यदि सुरक्षा है तो उस संविधान में ही निहित है। यदि संविधान सुरक्षित नहीं है तो ये समुदाय कभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। और ये संविधान के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि संविधान को ये अपने कल्चर का हिस्सा मानते हैं, ये अपनी जिंदगी जीवन का हिस्सा मानते हैं और ये उसको जीने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से सांस्कृतिक रूप से उस संविधान के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है, उस संस्कृति को जीने वाला समुदाय है। तो ये उसकी पहचान उस रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई इनकी सांस्कृतिक विरासत है। अब हम ये सोचे कि ये हम इसको कल्चर मानते हैं, इस कल्चर को कॉमन्स मानते हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा देर सवेर कि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये कॉमन्स की डेफिनेशन में होना ही पड़ेगा और होगा ही एक तरह से। तो यदि ये है तो हम इस कल्चरल, मेरे पास कितना समय और है? हो गया है लगभग, हाँ 5-7 मिनट मेरे को करने। तो यदि हम इसको कल्चरल को कॉमन्स मानते हैं तो हम इसकी जवाबदेही कैसे तय करें? क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक हम केवल चर्चा कर सकते हैं। तो ये कल्चरल कॉमन्स के लिए अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, कैसे उसको हम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इसको? तो मुझे लगता है कि जब अभी यदि हम ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉमन्स को, इस कल्चर को कॉमन्स मानने की जो कॉन्सेप्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको सरकार को स्थापित करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना, और वो समाज को भी समझना पड़ेगा। इसको एक कॉमन्स के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी और सरकार को इसकी एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि वो कैसे इसको अपने फ्रेमवर्क में डाले, अपनी भाषा में डाले। समाज को भी अपनी भाषा में इसको शामिल करना पड़ेगा
वो जवाबदेही समाज की भी है और वो जवाबदेही सरकार की भी है। ये संस्कृति ही भारत की विविधता को बचाता है। मतलब ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेज है वही हमारी डाइवर्सिटी और हमारे करती है। लेकिन इस कल्चर पे आज खतरा है। उस कल्चर और कल्चरल प्रैक्टिसेस करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा, और उसको बचाने की जवाबदेही जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है कि इस कॉमन्स को वो बचाए। इन कम्युनिटीज जिन्होंने इस कल्चरल प्रैक्टिसेस को जिया है, जो इस कल्चर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, उन कम्युनिटीज के लिए सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी को लाना पड़ेगा। वो कैसे रह रहे हैं, उनके राइट्स इंटाइटलमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनना पड़ेगा और उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर ये जो समुदाय है, ये समुदाय की एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के प्रति सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। उसको कहीं ना कहीं एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि एक कल्चरल प्रैक्टिसेज है उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उनको उनके लिए पॉलिसीज लानी पड़ेगी कि ये कम्युनिटी बचे, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेज बचे, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी कैसे तय हो वो बचे, तो उसको लाना पड़ेगा इस फ्रेमवर्क में। तभी मुझे लगता है कि ये संविधान का एक सपना पूरा होगा। क्योंकि ये यदि हम इसको कल्चरल कॉमन्स मानते हैं तो इन कम्युनिटी और इस कल्चर को भारत के हर नागरिक को सम्मान देना पड़ेगा, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसको इसको समझना भी पड़ेगा उनको, और गवर्नमेंट को इस कल्चर के लिए और इस कल्चरल प्रैक्टिसेस करने वाली कम्युनिटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये कम्युनिटी नहीं बचेगी, और कम्युनिटी नहीं बचेगी तो ये कल्चर नहीं बचेगा, और यदि ये कल्चर नहीं बचता है तो हमारा संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचता है तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, और डेमोक्रेसी नहीं बचती है तो देश नहीं बचता है। तो कल्चर का बहुत गहरा संबंध इस देश से, इसके कल्चर से, इस कल्चर का हिस्सा बहुत बड़े हमारे देश से, इसके संविधान से, इस डेमोक्रेसी से है। तो उसको हमें समझ के समाज को भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, और इस देश की सरकार को भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कोई सवाल है तो मुझे लगता है हम उस पर बात कर सकते हैं।